Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well and also continuing your studies. In last video, I have discussed about the reproductive system in humans. Now in this video, I am going to discuss some topics like fertilization, post-fertilization changes and what happens to the unfertilized egg. So let us start the class. Now, what is fertilization? Fertilization is the process of fusion of male and female gamete. As I have discussed before that fertilization is of two types, external fertilization and internal fertilization. If fusion of male and female gamete takes place outside the body of female, then it is called as external fertilization. And if the process of fusion of male and female gamete takes place inside the body of female, then it is called as internal fertilization. And this internal fertilization is an essential part of reproduction in human beings. Means human beings में internal fertilization होता है. अब ये fertilization होता कैसे है? During copulation, means during sexual mating, millions of sperm is deposited at the top of vagina close to cervix of uterus. Means sexual contact के दौरान millions of sperm जो है it get deposited, means पेनिस जो है बहुत millions of sperm रिलीज करता है और ये सारे जो स्पर्म है ये डिपॉजिट हो जाते हैं वेजाइना और सर्विक्स के बीच में. आफ्टर दैट दीज स्पर्म्स ट्रैवल फ्रॉम हियर टू अपवर्ड टू दी फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब तक ये जो स्पर्म है वो मूव करते हैं थ्रू यूट्रस से होते हुए. एंड विद इन 5 minutes दीज स्पर्म रीचेज टू दी फेलोपियन ट्यूब. 5 मिनट के अंदर ये जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं. एंड आफ्टर सम केमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल चेंजेस होने के बाद वहाँ पर उस फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम या एग प्रेजेंट है, फाइनली उस एग को एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है. रिमेंबर, कितने भी स्पर्म पहुँचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, बट द फर्टिलाइजेशन जो है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, वो एक ही स्पर्म कर रहा होता है. नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. फर्टिलाइजेशन होने के बाद मीन्स मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद बहुत से चेंजेस आते हैं. वो क्या है? इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed. Means after the fusion of male and female gamete, zygote is formed. And zygote, further this zygote start dividing. धीरे धीरे ये zygote जो है वो डिवाइड होना शुरू करता है. zygote क्या है? एक सेल है, मीन्स आप उसे यूनिसेलुलर कह सकते हैं. एंड दिस zygote starts dividing and after dividing for some time it forms a multicellular structure called embryo. इस embryo को blastocyst भी कहते हैं. और ये जो जाइगोट से embryo बनने का जो प्रोसेस है, इस दौरान ये जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव भी कर रहे होते हैं. जैसे जैसे जाइगोट जो है it used to move towards uterus, it divides and forms embryo. Now after reaching to the uterus, this embryo gets embedded in the uterus. Means embryo जो है वो uterus के wall से attach हो जाता है. And this close attachment of the embryo or blastocyst to the uterine wall is called as implantation. इस attachment के process को implantation कहते हैं. Now after implantation, this embryo gets nutrition for development. अब कहाँ से ये nutrition मिलता है? Embryo gets all the nutrition from the mother blood with the help of a special tissue called placenta. मीन्स जैसे ही embryo का attachment होता है, एक special disc like structure, tissues का disc like structure बनता है जिसे कहते हैं placenta. This disc like structure और placenta is embedded in the uterine wall. Uterine wall से attached रहता है completely. And this placenta contains a finger-like structure called villi on the side of embryo. Embryo की side में ये placenta finger-like structure contain करते हैं जिसे हम कहते हैं villi. अब ये villi का काम क्या है? If you remember, I have discussed that our small intestine
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बस वही काम यहाँ पर प्लेसेंटा का विलाई भी कर रहा होता है। वो विलाई जो प्लेसेंटा में एम्ब्रियो के साइड होता है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। मदर के ब्लड से एम्ब्रियो तक जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, उसके लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देता है ये विलाई विच इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द एम्ब्रियो साइट। नाउ आफ्टर दैट दिस एम्ब्रियो undergo various changes and this results into the development of organs। एम्ब्रियो में organs डेवलप होने लगते हैं और जैसे ही organs डेवलप होते हैं इस स्टेज पे एम्ब्रियो जो है it is called as fetus, means the at the stage at which embryo develops organ, then that time embryo is called as fetus। Now as the organ develops, अब fetus जैसे बन गया, embryo से fetus बन गया और organ डेवलप हो गया, then a special type of structure also get generated। एक अलग तरह का एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है and that structure is called as umbilical cord, and this umbilical cord establishes an intimate connection between the fetal membrane and placenta। जो placenta है उससे fetal membrane के बीच में एक intimate connection बनता है विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इंटीमेट कनेक्शन है फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा के बीच में। एंड व्हाट इट यूज टू डू, इट यूज टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वाटर एट्सेट्रा टू द fetus। And you know, this embryo and also fetus, they used to produce waste after some time। कुछ टाइम के बाद दे यूज टू प्रोड्यूस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड दीज वेस्ट हैव टू बी रिमूव्ड। हाउ डू दीज वेस्ट यूज टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम द फीटस? दीज वेस्ट आर रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मेम्ब्रेन जो होता है वो काफ़ी परमिएबल होता है, तो जो भी जैसे शुरुआत में एम्ब्रियो के पास उसी प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वाटर फीट एम्ब्रियो तक पहुंच रहा था, वैसे ही जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फीटस, जो फीटस प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होकर फीटस से मदर के ब्लड में जो है वो मिक्स हो जाएंगे and from there it used to get removed। Now the complete development of child inside the mother's blood takes approximately 9 months। 9 month approximately complete development चाहिए होता है एक child के लिए, child के proper development के लिए। and after the 9 month and after proper development of child, the child is born, means this child is born as a result of contraction of the muscles in the uterus। uterus के muscles के contraction के help से this child used to born। Now one question arises, what happens when the egg is not fertilized? क्या होता है अगर egg fertilized ना हो? You know, every month one egg get matured in human female by the help of estrogen। हर मंथ एक एग मेच्योर होता है एंड आफ्टर मेच्योरेशन दिस एग गेट रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब। मेच्योर एग ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। एंड वन थिंग मोर ऑकर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। During ovulation or during the release of mature egg from ovary to fallopian tube, one hormone is produced by the ovary named progesterone। progesterone hormone release होता है। अब जैसे ही ovulation होता है, after ovulation this mature egg used to wait for 2 to 3 days in fallopian tube for fertilization। ये मेच्योर एग 2 से 3 दिन फर्टिलाइजेशन के लिए फैलोपियन ट्यूब में वहीं पर वेट कर रहा होता है एंड मीनवाइल इस बीच में दैट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच इज़ बीइंग रिलीज्ड
during ovulation from the ovary, this used to थिकन दी लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब. जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसे ये थिक कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बाय accumulating the tissues, extra tissues on the inner lining of the uterus. अब इसकी ज़रूरत क्या है, थिकनिंग की ज़रूरत क्या है यूट्रस की? This is important for the implantation of embryo and growth of fetus. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन ताकि वहाँ इम्प्लांटेशन हो सके एम्ब्रियो का और फर्दर फीटस वहाँ पे ग्रो कर सके. नाउ इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है आफ्टर वेटिंग 2-3 days, तो क्या होता है? आफ्टर दैट ये जो लाइनिंग बनी यूट्रस की, अब इसका कोई यूज़ नहीं है. जो प्रोजेस्टेरॉन ने थिकनिंग की थी यूट्रस की इनर लाइनिंग की, उसका अब कोई यूज़ नहीं है. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसके बाद होता ये है, दिस एक्स्ट्रा लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो टिश्यूज़ की एक्स्ट्रा लाइनिंग है यूट्रस की, वो and the unfertilized egg, this both get released. This both unfertilized egg and the extra lining of the uterus, it breaks down and this both comes out through the vagina with the blood and mucus. Blood एक मीडियम है जिसके साथ जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है यूट्रस की, वो थिकनिंग, वो लाइनिंग, वो टिश्यूज़, वो ब्रेक डाउन होकर और साथ ही साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो सारे ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर रिलीज़ होते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द एक्स्ट्रा लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड अनफर्टिलाइज्ड एग through the vagina is called as menstruation. इसे हम कहते हैं menstruation. And the first menstruation in human female takes place at the starting of puberty. जैसे puberty start होती है तो first menstruation ये होता है. And this first menstruation of human female is called as menarche. And the last menstruation is called as menopause. मीन्स ह्यूमन फीमेल की लाइफ में जो लास्ट मेनिस्ट्रेशन होगा आइदर एट द एज ऑफ 45, 50 और 55, इसे हम कहते हैं मेनोपॉज. नाउ दिस होल प्रोसेस विच आई हैव डिस्कस्ड मीन्स दिस होल प्रोसेस of maturation of egg, ovulation, and if it does not get fertilized, then menstruation means maturation, egg का mature होना, ovulation, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अनफर्टिलाइज्ड एग का रिलीज यानी मेनिस्ट्रेशन होना. ये सारा प्रोसेस जो है इट इज़ रिपीटेड एवरी मंथ. हर मंथ ये रिपीट होता है एज अ साइकिल, साइक्लिक फॉर्म में. मीन्स हर मंथ एग मेच्योर होगा, ओव्यूलेशन होगा मीन्स रिलीज ऑफ दैट मेच्योर एग फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेनिस्ट्रेशन. एंड अगेन दिस इवेंट्स यूज टू रिपीट इन नेक्स्ट मंथ इन अ साइक्लिक फॉर्म. एक तरह से साइकिल के फॉर्म में ये इवेंट्स रिपीट होते रहते हैं. एंड दिस साइकिल और ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल, अगर इस साइकिल की ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, देन इट इज़ अराउंड 28 to 30 days. हर मंथ 28 या 30 days का ये एक साइकिल चल रहा होता है. एंड दिस साइकिल is called as menstrual cycle. Means you can say the cycle of events taking place in female reproductive organs every month under the control of sex hormone is called as menstrual cycle. हर 28 days के बाद menstruation होता है. मीन्स एक साइकिल चल रहा होता है और इस साइकिल को कहते हैं menstrual cycle. So that's all for this video. In next video I will discuss about methods of population control and reproductive health and sexually transmitted disease. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.